Hello dear student. Now we have next video number 4, ongoing chapter number 2 in history class 10, nationalism in India. Previous 3 videos we have discussed about nationalism feeling in India, and especially we refers to Mahatma Gandhi. Now today the topic 2.3, Swaraj in the plantations. So now the workers too had their own understanding of the Mahatma Gandhi and the nation of the Swaraj for the plantation workers in Assam. बेटा देखिए, प्लांटेशन वर्कर जो असम एरियाज़ में थे, स्पेशली जो पौधे के रूप में खेती करते थे, बागवानी करते थे, और असम में स्पेशली टी प्लांटेशन वहाँ पे ज़्यादा होता था। तो वहाँ के वर्कर्स ने मिलकर कैसे अपने स्वराज के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए अपने आप को स्टेबल किया, तैयार किया, और महात्मा गांधी ने इनको कैसे सपोर्ट किया। सो ऑल दिस वी डिस्कस इन दिस वीडियो. So freedom mean to the right to move the freely in and out of the confined space of which they were the enclosed, and the mean retaining the link with the village from which they had come. अब देखिए यहाँ पे प्लांटेशन में क्या होता था, स्पेशली कि जो लोग यहाँ पे प्लांटेशन के अंदर जो काम कर रहे थे, इनक्लोज्ड हो गए थे, वो एक तरह से उसी सर्किल के अंदर बंद हो गए थे बेटा। अलग अलग पार्ट से वो आए थे, बट ब्रिटिश रूल्स और उस समय उनके जो लॉस ऐसे थे कि उनको जाना नहीं दिया जाता था। एक तरह से उनका फ्रीडम वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, दैट द मीन्स ऑफ द फ्रीडम है ना, प्लांटेशन वर्कर्स की फ्रीडम का मीन्स है कि जो एरिया है जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं वहाँ से वो बाहर निकल सकें, और जिस जगह से वो आए हैं, स्पेशली जो भी उनका होम टाउन है, वहाँ पे वो वापस जा सके और उनको वहाँ पे कुछ राइट्स प्रोवाइड हो। Under the Inland Immigrations Act of 1859, plantation workers are not permitted to leave the tea gardens without the permission, and in the fact they are rarely given such permission. अब देखिए, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अकॉर्डिंग जो प्लांटेशन में वर्कर्स काम कर रहे थे विदाउट परमिशन, वो बेटा अपने उस एरियाज़ को छोड़ के नहीं जा सकते थे। So when they heard to the non-cooperation movement, thousands of the workers defied the authorities, left the plantation and headed home. They believed that the Gandhi Raj was the coming and everyone will be the given land in their own village, and they however never reached their destinations. Instead, on the way be the railway and the steamer striker, and were caught the police and the badly beaten up. So the vision of the movement were not defined by the Congress program. They interpreted the term the Swaraj in their own ways. Immigrating up to be the time will be the suffering and the trouble would be over, and yet when the tribals chanted the Gandhiji name, the raised the slogans demanding Swatantra Bharat. Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to in all Indian agitations. When they acted in the name of the Mahatma Gandhi or the link their movement onto the Congress, they were identified with the movement which went beyond the limits and their immediately locality. There is the picture, एक picture है बेटा, there in the incident of Chora Chori incident in the February 1922. Because when is this time the non-cooperation movement in the very high, बहुत अच्छी तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, बट ये इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी एंड थिंकिंग की जो सिचुएशन था वो बेटा नॉन वॉलेंस वाला हो गया था, वॉलेंटली वाला सिचुएशन हो गया था, बिकॉज गांधी जी द फेवर द नॉन वॉलेंस। अब यहाँ पे जब लोगों ने पुलिस चौकी में जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे उनको जिंदा जला दिया गया। सो उसके बाद कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद महात्मा गांधी ने अपना जो कॉल ऑफ किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। ठीक है, इसके बाद बेटा जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, उसके बाद सेकंड जो लार्जेस्ट इम्पैक्ट था महात्मा गांधी का इन इंडियन नेशनल मूवमेंट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सो इन द February 1922 महात्मा गांधी डिसाइड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द रीजन इज चोरा चोरी इंसिडेंट, गोरखपुर यूपी के अंदर है चोरा चोरी। ठीक है, ही फेल्ट द मूवमेंट was the turning violent in the many places, and the satyagrahi needed to be the properly trained before would be ready to the mass struggle. अब इसके बाद गांधी जी ने ये सोचा कि जो सत्याग्रही हैं उनको मुझे और अच्छी तरह से ट्रेन करना होगा, बिकॉज महात्मा गांधी किसी भी कीमत पे वो ये नहीं चाह रहे थे कि नॉन वॉलेंस को वॉलेंस एक्टिविटीज़ को वो सपोर्ट करें। ठीक है,
So within the Congress, some leaders were by now the tried to the mass struggle and wanted to the participate in the elections to the Provincial Council that had been the set up by the Government of Indian Act 1919. So they felt गांधी जी ने महसूस किया बेटा दे फेल्ट दैट इट वॉज द इम्पॉर्टेंट टू द अपोज द ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल्स आर्ग्यू फॉर द रिफॉर्म एंड आल्सो द डिमोस्ट्रेट दैट दीज द काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक सी आर दास चितरंजन दास ठीक है सी आर दास का फुल है चिरंजीवी चितरंजन दास एंड द मोतीलाल नेहरू इज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन है सी आर दास एंड द मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। तो इन दोनों ने मिलकर बेटा एक नई पार्टी बनाई, द नेम इज पार्टी स्वराज पार्टी। Within the Congress for the argues to the return the council of policies, but the younger leader like the Jawaharlal Nehru and the Subhash Chandra Bose pressed for the more radical masses agitations for all full independence. In the such a situation to the internal debate and the discussions, two factors against shaped the Indian politics towards the late 1920s. The first war of the effect देखिए फर्स्ट वॉर बिकॉज 1940 से लेकर 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला है द मीनिंग इफेक्ट टू द वर्ल्ड वाइड द इकोनॉमिक डिप्रेशंस। देखिए आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेटा कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस बनी बेटा। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू द फॉल फ्रॉम द 1926 टू क्लॉप्स आफ्टर द 1930। इसके बीच में एग्रीकल्चर्स के जो प्राइस थे बिकॉज द थ्रॉट्स का और नेचुरल प्रॉब्लम्स होने के कारण इतना प्रोडक्शन हुआ नहीं और उसके कारण भी कहीं ना कहीं इनके प्राइस थे वो कम हुई। एंड अदर रीज़न आल्सो as the demand of agriculture goods fell into the export decline and the peasant found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By the 1913 the country yard side was the turmoil. Against this the background the new टॉरी गवर्नर इन द ब्रिटेन। अब देखिए टॉरी गवर्नमेंट बना बेटा ब्रिटेन में, टॉरी इज द प्राइम मिनिस्टर, वो उनके लीडरशिप में नया गवर्नमेंट बनता है एंड द कॉन्स्टिट्यूट इज द सेटेंटरी कमिश्नर अंडर द सर जॉन साइमन। ठीक है, और इन्हीं के अंडर में बेटा साइमन कमीशन इंडिया में आएगा। सेटअप द रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, द कमीशन वॉज लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम in India and suggest the change. The problem was the commission did not have a single Indian member, they were all the British. अब देखिए बेटा साइमन कमीशन जब इंडिया आते हैं तो इंडिया वाले उसको बेटा अगेंस्ट होते हैं, उनके अगेंस्ट धरने दिए जाते हैं, गो बैक साइमन के नारे दिए जाते हैं और इस इंसिडेंट में लाला लाजपत राय का डेथ होता है। ठीक है, तो रीज़न यह है बेटा बिकॉज जब साइमन कमीशन इंडिया आए, सर जॉन साइमन उसको लीडर कर रहे थे, लीडरशिप दे रहे थे। इस साइमन कमीशन में सारे जो भी मेंबर्स थे ऑल आर इन इंग्लिश। ठीक है, ब्रिटेन के जो लोग थे वो सारे थे, द कलर ऑफ स्किन इज़ वाइट, तो कोई भी इंडियन नहीं होने के कारण बिकॉज वो यहाँ पे इंडिया की सिचुएशन को, नेशनल मूवमेंट की जितने भी इंसिडेंट हुए उन सबको स्टडी करने आ रहे थे। और जब वो अपनी रिपोर्ट देते तो बिकॉज कोई इंडियन नहीं है तो इट्स होप कि वो ब्रिटिशर्स का ही फेवर करेंगे। सो डेट द रीजन्स इसको अपोज किया गया। ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशंस इन द एफर्ट्स टू विन देम ओवर। द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन, एट द टाइम इन द इंडियंस वाइसरॉय कौन थे बेटा? लॉर्ड इरविन, अनाउंस इन द अक्टूबर 1929 द वेजू ऑफर इन द डोमिनियन स्टेट्स। ठीक है, डोमिनियन स्टेट्स का प्रोवाइड करना। ठीक है, इंडिया इज इन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस RTC, 3 टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 होते हैं बेटा, और सेकंड वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट लाइन। ठीक है, सो राउंड टेबल और ये सारे बेटा इंग्लैंड में होंगे, ब्रिटेन के अंदर ये सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते थे टू द डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया का जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा। So they did not satisfy the Congress leaders. The radical within the Congress led by Jawaharlal Nehru and the Subhash Chandra Bose become the more assertive, the liberal and the moderate who were the proposing the constitutional system within the framework. The British domination gradually lost their influence in the December 1929. अब देखिए बेटा क्योंकि ये लोग अपना बेटा इतना प्रभाव उस समय नहीं बना पाए। सो इन द December 1929 अंडर द presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formation the demand of पूर्ण स्वराज
एंड फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। दिसंबर 1929 में लाहौर में जो कांग्रेस का सेशन था वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस किया पूर्ण स्वराज, टोटली इंडिपेंडेंस, एंड 26 जनवरी 1930 would be the celebrate for Indian Independence Day, when the peoples were take the place and to the struggle for the complete independence, but the celebration attract very little attention. So the Mahatma Gandhi had to find the way of the relate to the abstract ideas to freedom more concerned issues to everyday life. So in this video, thank you.